personal makeup workshop, how will you do makeup without a foundation? Yeah, I know that. I recently You bought need one. to buy. No, I recently bought one. Actually, I am not much into makeup and all. I have always kept it very natural. Only a kajal and little blusher and a lipstick and a liner is a must for me. So, but this time, I made this effort. I went to the market and got myself a foundation as well as a concealer, as well as a, that powder. So I got it. So, but I haven't used it yet. So waiting for your workshop. So how to use it? Yeah. It's so that's okay that you have to use it, but you should have the product at least. Yeah. I have. You have to buy. Yeah. Yes, Arushi. Hi. Yeah, great. Hello. Great. Yes. So I am asking from everyone, guys, have you watched my video on Facebook? Video dekha tha how to buy a foundation, how to buy a compact. Have you seen? So you have to watch it, guys. That's why I'm doing this online session. That watch that video. That is very, very, very important. If you will not do that, so I'll be wasting my time and our energy as well. And it will be absolutely of no use to do this workshop then. Then I have to take this workshop, sometime other with. So there is no point of attending this workshop without understanding the basics. So guys, watch that video once, twice, thrice, but you have to watch it. Yes, Himanshi. Hi, SD. I watched the video and got really. Himanshi, are you listening to me? Hi. There were certain things which I had no idea about, like the corrector, the color wheel that you showed, and so many other things. The concealer, actually, why do we use concealer? The technical knowledge was zero. But after seeing that video, I came to know what were the reasons that we had to use those products, because I had all the products, but I never knew why are we using it. Yeah. Thank you so much for that video. Exactly. So you're welcome. You're welcome. So if you guys haven't watched my video yet, watch it at least thrice. Today is 22nd and you still have 23rd and 24th and today's day as well. So you have 3 days in your hand. Watch that video and then only go and buy your foundation. I want all of you to have foundation and rest of the other things with you ready, so that as soon as you join my offline workshop, everything should be ready with you. Is that okay? Yeah. It is very, very important. Okay. So हम एक quick recap कर लेते हैं से. And I'm getting whole requests that Chika, wait, I'm also joining in. So, okay, I'm waiting. Don't worry. If my team is listening, please put everyone's mic on mute and let me start the class. If my team is listening, please. Okay, so whatever you want to ask me, I will give you time. You can write in the chat box and you can talk to me. Okay? So don't worry. Okay. Arushi is saying, I will definitely watch them today. Yes, good. Great girls. Okay. So this is the curriculum, guys. What you will be having on the first day of your class with you. I'll give these kind of curriculum to all of you. Okay, in which there is about Beauty Station, about my brand, then little things about me, then what is the content of our personal makeup workshop. Everything is mentioned out here. Okay, so keep this always with you for a future assistance or something like that. So everything is written here. Can you see these color wheels?
Color wheel is also there. What are correctors? What are primers? What are primary colors? What are secondary colors? Everything I've mentioned here. What do you require for eye makeup? What are lipsticks? What different kind of lipsticks? Everything. And then I've also given you the space so that you all can write your own notes according to your own, grasping power or techniques, whatever you have gauged out of my personal makeup workshop, you can write here. Okay. So first, before starting on to makeup, I really want to tell each one of you that skincare is very, very important. How many of you really focus on your skincare regime? Do you do CTM, cleansing, toning, moisturizing twice a day? Or you are just lying? Once. So Swati is saying once. Good, Swati, for your honest review. Once. Himanshi is saying once. Yes, Chitra, do you do it? Your skincare regime once or twice, or you don't do it? Be very honest and vocal about it. Manisha is saying, to be honest, not regularly. My God. Why? You guys don't love yourself or what? Arushi is saying, not really. Why, Arushi? I want to kill you. Why you don't do it? My God. People are saying, never done it. Himanshi is saying, I've started doing after that video. What you girls are up to? You are making others happy or what? You don't know the importance of skincare. Do you really know that what is the importance of skincare? Or you don't know it? कितनी ads देखते हो? कितने सारे Bollywood stars को देखा होगा कि वो DIY करते हैं? Do you love Malaika Arora? Do you like Malaika Arora? Do you know who is Meera Kapoor? Yes, Shahid Kapoor's wife. She is not a Bollywood star. She is married to Bollywood star, right? Why is she talking about holistic approach towards skin and hair? What is she up to? She is not a brand ambassador of any brand. Why she is talking about concoctions? Why she is saying that I used to do it from when I was 14 years of age? Why she is telling you all? Why she is telling you that, DIYs are very powerful. Yes, of course, you have to do patch tests because sometimes things are allergic to some people. But you should always take care of your skin. Chalo, let's not talk about DIYs. Keep them aside. आपको दिन में 2 बार फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर करना है. कैसे करना है? आता है? Do you know that? Let me just do this, a very interactive session. Swati, type it in the chat box that do you know how to do a face wash? Each and every one of you just type it in the chat box that do you know how to do a face wash? Most of the people will write yes. I know how to do a face wash. Arushi is laughing and I want to kill you that you don't do your CTM, which is so important. You eat food, right? Chitra is saying, saw your YouTube channel. Okay, smartphones are with you right now. Yes? Go to YouTube and right now, I'm forcing you, right now, subscribe to my channel and give this as a gift to yourself. I have, invested my at least, how many hours should I say? 21 days and I have not calculated the hours when I did, these kind of free CTM sessions during lockdown time. And it was so important and they are so easy to do it. Only the thing is that you have to promise yourself. Go to my YouTube channel right now. Don't talk to me. Only listen to me. And subscribe to it right now. I'm telling you, do it right now. It will be a game changer for you. Okay? Have you done it? Who all have done it? Who all have subscribed to my channel? Okay, Arushi is saying done. Himanshi is saying done. Great. Okay, Chitra is saying I've done it. So now you don't have to only subscribe it. Okay, I already have the subscribers. This is not something that I want subscribers. I'm already done with my girl gang. So I'm not only saying you for the subscription, guys. Come on. Now, what I want you to do every day, make a promise to yourself that you have to play my 21 days, day 1.
Do your only face wash, toner and moisturizer with me. You do not want to apply DIY mask, it's okay, skip it. उस पार्ट को भूल जाओ जब मैं DIY लगा रही हूँ, बट फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर जब मैं कर रही हूँ, आप रोज मेरे साथ करेंगे और उस वीडियो को प्ले करके करेंगे. Day 1, Day 2, Day 3 रोज देखोगे और आपको ऑलमोस्ट 7th डे पे याद हो जाएगा कि मेरे मूवमेंट किस तरीके से आते हैं. इज दैट ओके? अभी एटलीस्ट क्लास के लिए तो कर लो. प्रिपेयर योर स्किन फॉर मेकअप. It is my humble request to all of you, please do skincare regime. Please do it. ठीक है? मैं आज से आपको रिमाइंडर कॉल दिया करूंगी, रिमाइंडर मैसेज. जिसको अगर मेरे रिमाइंडर मैसेज अच्छे नहीं लगे, you can block. But still, I will give to all of my students. I always मैसेज दूंगी, एक शाम को दूंगी और मे बी रात को दूंगी. That do your CTM or do your skincare regime, which includes your face wash, toner, moisturizer, under eye cream and lip balm. Okay? 5 steps. ठीक है? याद रहेगा. And then you can give me a high five. Cool. Whatever face wash you have at home, just do it. करना है. सिर्फ मुझे सब्सक्राइब करने से स्किन अच्छी नहीं होने वाली है. Okay, first thing. Second, you have to be consistent. You have to do it daily. Whether you have normal to dry skin, whether you have acne prone skin, whether you have dehydrated, you have to do it. Like lux, like pears on your face. It disturbs the pH level of your face. Okay? Then, next. Whenever you feel that your skin is going dry, flaky, and your skin is stretching, start using 24 karat gold oil in your skincare before the moisturizer. इतना सब कुछ समझ में आया? But if your skin is oily, if your skin is acne prone, do not use this oil, which is called 24 karat gold oil. ठीक है? कभी कभार 24 karat gold oil में 2 variants आते हैं. Indulgio, you can write it down. There are 2 brands which I swear by. One is called Indulgio, one is called Milagro Beauty. And I will talk to Milagro Beauty if they can offer you some good discount if you order from their website. Okay? I'll talk to the owners and then I'll get some discounts for you guys. So मुझे remind करवा देना because I forget things. Second, there is called Indulgio Rose Gold Oil. They have got 2 variants. One is for normal to dry skin, one is for normal to oily skin. कभी कभार normal to oily skin वाले लोगों को भी ना यहाँ पे काफी flakiness हो जाता है जब weather change होता है. So then what you can do, अपना cleanser करा, toner करा, सिर्फ 1 या 2 drops लिए, oil के उसको अच्छे से rub करा, activate करा product को and then उसको dab करा, जहाँ पे भी flakiness हो रही है. Wait for 2 to 3 minutes and then do the moisturizing. People who are having normal to oily skin will do water-based moisturizer. People who are having normal to dry skin like me will do cream-based moisturizers like almond moisturizing lotion. Okay? Next. Now, let's talk about this most important thing which every one of you really neglect. I also used to neglect. Let me be very honest. When I was busy in my studio and I was making my own brand, so I never had time. Our skin is deteriorating on a daily basis. कभी दूसरों को समझाते अपना बिजनेस चलाते हुए ना आप कभी कभार खुद को भी इग्नोर कर देते हैं. सो लॉकडाउन होने से पहले मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन अच्छा हुआ कि हुआ, उसमें कुछ प्लस भी हुआ, कुछ माइनस भी हुआ. तो मेरा एक बहुत सुंदर स्टूडियो होता था जो चला गया. बट जब भी वो स्टूडियो गया एंड बंद हुआ लॉकडाउन में, सब कुछ बंद हुआ, तो मेरे पास बहुत सारा एम्पल टाइम था. So, as you all know that I am always connected to girls, and when I used to go to my studio, I was always surrounded by girls. So I was having this, fear of losing out. So I thought, let me start this skincare routine, and so that I should be connected. I
only thought this, and gradually got so much immense love and support from all of you that I launched my own brand by the name of The Botanical Secret, where I do these kind of powerful DIYs. And what I did to my skin, that was total ignorance. I never used to apply under eye cream. I never used to do lip scrub. My lips were always chapped. I always used to invest in high-end brands. I always thought जो महंगा है वो अच्छा है, जो सस्ता है वो खराब है. This was my, thinking. I should be very honest about it. It was. But when I got whole lot of time and I was not firefighting, I was not going anywhere, I was at home. So I started this, DIYs and my own skincare, and people started joining in. And they told me that they are really good. Why don't you take it to the next level? And then I thought that, I should think about it and start spreading education that, come on, guys, do CTM. I never applied my under eye creams, and now I've developed wrinkles around my under eyes, and I'm 40. But after taking good care of my skin and my under eyes, now, thankfully, of course, I'm aging, but my wrinkles and fine lines are not looking that bad because I always hydrate them. I always hydrate my under eye area. Now, on this point, I want to ask, how many of you seriously apply under eye cream after the moisturizer or before the moisturizer? Do you do it? Write it in the chat box. I really want to know कि कितने लोग करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं करती हूँ, but और लोग करते होंगे. अब तो करती हूँ मैं. So Nikash Khurana is saying no. Swati is saying no. Arushi is saying no. Chitra is saying I do cause of my dark circle issue. Good, Chitra, at least you do it. मैंने तो करा ही नहीं था. Seriously, so I should admit कि मैंने नहीं करा था. But जब भी से मैं under eye creams, under eye oils करने लग गई हूँ, so मैंने वो difference देखा है. अब मेरा इतना ज़्यादा product, जब भी मैं concealer या compact लगाती हूँ, तो यहाँ पे आके फंसता नहीं है. It glides on smoothly. Of course, जो lines आ गई हैं, मुझे wrinkles आ गए हैं, वो तो होगा ही, वो तो दिखेगा ही. Age आप नहीं छुपा सकते, but at least वो बुरा नहीं लगता है. Okay, so that means skincare is very important. कितने बार लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भी हम कहीं बाहर से, let's do not consider that I'm a makeup artist right now. Trust me, and then only you can give me right answers. Now answer me this point. कितनी बार ऐसा होता है जब हम बाहर से मेकअप कराते हैं, या जब हम, हमारी फ्रेंड, हमारी सिस्टर हमारा मेकअप करती है, या हम खुद अपना मेकअप करते हैं, हमारा मेकअप ड्राई, केकी, पाउडरी, पैची हो जाता है. कितनों के साथ ऐसा होता है? Write it in the chat box. Manisha is saying मेरे साथ होता है. Good. So first I'm trying to understand and make you understand that these are your problems. Chitra is saying I do when self makeup is done. Arushi is saying not with me because I apply. Okay, messages are coming, so I can't read. My makeup transfers on other surface. Someone has written. Okay. So ये क्यों होता है मैं बताऊं? इसके बहुत सारे reasons होते हैं. कितनी बार, okay, Chitra is saying it turns grey too. Good. ये अगर comment ना आए ना मेरी personal makeup workshop में, तो मुझे लगता है कि everything is going right. How come? Then why they have joined my personal makeup workshop? Makeup grey ही नहीं हो रहा है. Grey होना चाहिए. सबका होना चाहिए grey. क्योंकि grey ही नहीं होगा, problem ही नहीं है, तो solution कैसे होगा? So understand, where there is a problem, there is a solution. Okay, मेकअप ग्रे होता है, मेकअप पैची होता है, मेकअप ट्रांसफर होता है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है, या हमारे फ्लॉज दिखते हैं, या हमारे हस्बैंड या हमारा पार्टनर या हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं यार तू कितना मेकअप करती है, यू डू टू मच. कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? और कितने लोगों के साथ एक और चीज होती है, जब भी वो मेकअप करते हैं और जाते हैं फंक्शन में, उनको कार में ही कमेंट मिल जाता है, यू आर नॉट लुकिंग गुड, you are looking very bad, and then they start wiping their makeup like this, and then their makeup goes patchy, and then whenever they reach the venue, they wash it off.
Has it ever happened to you? ऐसा किस किस के साथ हुआ है, या तो किसी के साथ हुआ ही नहीं, किसी के साथ भी नहीं हुआ? अगर हुआ है, so the problem is not in the brand, problem is with you. You don't take care of your skin, you don't apply moisturizer, apply under eye cream, you don't scrub your lips, and then you blame the brand. The brand is LS. Next time I will invest in high-end brand. आप ब्लॉगर्स को देखते हैं, आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो आपको लगता है वो शिट, मेरे पास तो एस्टी लॉडर नहीं है, मेरे पास तो मैक नहीं है. इनका बेस इसलिए अच्छा बन रहा है कि इनके पास मैक है. ऐसा कितने लोग सोचते हैं? नीतू मैम, ऐसा आप सोचते हो कि जिनके पास एस्टी लॉडर है, जिनके पास अरमानी है, जिनके पास शार्लेट टिल्बरी है, उन्हीं का बेस अच्छा होता है, हमारा तो नहीं अच्छा हो सकता? सोचते हैं. हिमांशी, आप क्या सोचते हो? आई वांट टू नो. बहुत बहुत सारे लोग यही सोचते हैं. आरुषि सिंह, समटाइम्स. डू यू नो मेबेलिन एंड मैक का मेकअप स्टूडियो फिक्स फ्लूइड, एक फाउंडेशन का नाम है मेकअप सॉरी मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड. दे बोथ आर सेम. डू यू नो दैट? अगर आप यूट्यूब पे कभी ये चीज, व्हाट इज द मैक स्टूडियो आएगा फिट मी ड्यूप फिक्स फ्लूइड का. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, यही ड्यूप है. ड्यूप का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेट नहीं होता है. ड्यूप का मतलब होता है सेम चीज बट लेसर ब्रांड में, सेम शेड पर दूसरे ब्रांड में जिसकी कॉस्ट कम है, सेम इफेक्ट. सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं. प्रॉब्लम अभी हम बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जिनका मेकअप बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है फेस पे, ड्राई हो जाता है, केकी हो जाता है, और ऐसा लगता है पूरे फेस पे पाउडर लगा के आए. ऐसा होता है? नहीं होता है? होता है. हिमांशी के साथ होता है. स्वाति, आपके साथ होता है? दिव्या इज सेइंग यस, होता है. स्वाति तो लगाती ही नहीं है. ओके, तो चलो, स्वाति इज अ एक्सेप्शन. नीतू मैम के साथ नहीं होता है. और किसके साथ होता है? मेरी रियल सिस्टर के साथ होता था. ओके, उसके बाद जब भी मैंने उसको ये समझाया, बिकॉज शी इज अराउंड 6.5 years elder to me, 5.5 or 6.5. So I explained her that, Didi, you know what is the problem? Problem is not in the foundation. So let me just tell you the story. Whenever she used to apply the foundation at home, she used to crib. वो हमेशा रोती थी. And whenever we used to apply the same foundation, we used to do the same makeup in my studio, my staff used to do it for her, she was very happy. You know why? Do you know why? My sister never takes time for her skin care. This is her problem. She is always busy in doing the household chores, in making her bed sheets ready, in, you know, pleasing everybody in the house, except then her. She's not having time for herself. I talk to her and I tell her that, have you washed your face? You know after how many days she washed her face? 5 days. And then I used to ask her, do you apply moisturizer? No. Then how can your base be right if your skin is not right? And whenever she used to come to my studio for functions, she used to get her same foundation. So, you know what we do? First, we clean her face. We used to tone her face. We used to apply Milagro oil. Then we used to, you know, tell her to wait. Let it seep in into her skin. Then we used to start with the makeup. Same product, same इंसान, same skin. तो जब वो अपने आप फाउंडेशन लगा रहा है, तो फाउंडेशन खराब क्यों हो रही है? क्यों इकट्ठी हो रही है? क्यों केकी हो रहा है फेस? और जब एक प्रोफेशनल लगा रहा है सेम फाउंडेशन, तो वो क्यों ठीक हो रही है? क्योंकि प्रोफेशनल को मालूम है, अगर स्किन केयर नहीं करोगे, अगर स्किन ठीक नहीं है, विच इज द मेन बेस ऑफ योर मेकअप, सो फाउंडेशन कुछ नहीं कर सकता.
आप दुनिया की कोई भी फाउंडेशन ले आइए, वो केकी भी होगी, पाउडरी भी होगी, ग्रे भी लगेगी और पैची भी हो जाएगी. सो हमें एक बात समझनी है, कोई भी फाउंडेशन हो दुनिया की, वो शार्लेट हो, हुडा हो, मैक हो, बॉबी ब्राउन हो, एस्टी लॉडर हो, स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक और आपको बात से समझाती हूँ, अगर इन ब्रांड्स को नहीं पता होता कि स्किन केयर कितना इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये अपना स्किन केयर लॉन्च करते? आज जब भी आप मैक पे जाते हैं, आपको एक टोनर मिलता है जिसको बोला जाता है मैक फिक्स प्लस. एक स्प्रे होता है जो आपके फेस पे, उस पे लिखा होता है प्रेप प्लस प्राइम. प्रेप का मतलब होता है प्रिपेयर, प्राइम का मतलब होता है इट इज एक्टिंग लाइक अ प्राइमर. राइट? यू कैन डू इट बिफोर द मेकअप, you can do it during the makeup, you can do it after the makeup. It gives you hydration. आज की डेट में अगर इंग्लॉट आपने ब्रांड सुना है, इंग्लॉट का भी स्किन केयर आता है, मैक का भी स्किन केयर आता है, बॉबी ब्राउन का भी आता है, एस्टी लॉडर का भी आता है, शार्लेट का भी आता है. Because they know that if your skin care is right, your makeup will be on point. Is that clear? यहाँ तक सबको समझ में आया? स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ठीक है तो आप दुनिया में मेकअप लगा लीजिए, आप परफेक्ट बैठता. वेदर एज शार्लेट, ओनली 3 things matter. Now listen to me. अगर नींद आ रही है तो पानी पी लो. Only 3 things matter. Right tool, right product, right technique. अगर आपके पास टूल ठीक है, that means जिससे हम अप्लाई करते हैं कोई भी चीज. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी ब्लेंडर, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन ब्रश, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज. Second, right product, the right shade of foundation, the right correct shade of concealer, right shade of compact, anything which is absolutely bang on your skin, your makeup can never go wrong. Then is the technique. Right tool है, right product है आपके पास, पर आपके पास right technique नहीं है. कौन सी चीज पहले लगानी है, कौन सी चीज बाद में लगानी है, कैसे लगानी है. राइट टेक्निक का एक छोटा सा एग्जांपल है, डॉटिंग. डैब क्या होता है, उसको इस तरीके से बिठाना. कितने लोग डोसा बनाते हैं? डोसा बनाना आता है? किस किस को आता है डोसा बनाना? मुझे नहीं आता है. नहीं आता है. रोटी बनानी आती है? रोटी बनानी आती है. गोल रोटी किसकी अच्छी बनती है सबसे? मेरी नहीं बनती है, स्वाति की भी नहीं बनती है, आरुषि बोल रही है मेरी बनती है. ओके, सो निकाश खुराना की भी बनती है, चित्रा की भी बनती है. चलो, कैसे बनती है रोटी गोल? जब आपका आटा ठीक होता है, when the dough is nice, right? And when you, जब आप उसको बेलते हैं ना ठीक करेक्ट टेक्निक से, राइट लेफ्ट सेंटर, राइट लेफ्ट सेंटर, तब वो ठीक बनती है. और इसके बाद जब आपका तवा बिल्कुल गर्म होता है, ठीक होता है, गंदा नहीं होता, आपकी जो हीट होती है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट होती है. And then you know when to flip it and when to remove it. In the same manner, everything is logic. In makeup also, everything is logic. Skin है आपकी ड्राई, आप लेके आए अरमानी फाउंडेशन, और आपकी अरमानी फाउंडेशन सेट ही नहीं बैठ रही है. क्यों? क्योंकि आपने ना स्किन केयर करा, ना आपके पास टूल था, ना आपके पास टेक्निक थी. सो मेकअप ठीक नहीं आ सकता. So there is no problem in Rajdhani atta, there is no problem in Chakki ka atta. So in the same manner, there is no problem in Maybelline foundation, there is no problem in MAC foundation, in any foundation. The problem is in you. You don't know how to apply it. You don't know how to buy it. You don't know what is the right technique. So the problem is here, not in the brand. Brand ने एक foundation बनाई जो हर celebrity भी लगाता है, हिंदुस्तानी भी लगाता है, फिरंगी भी लगाता है, मेकअप आर्टिस्ट भी लगाता है. Okay, so now you have joined my offline personal makeup workshop. You need to understand skin care is very, very important. It is the main foundation of makeup. Cheese. Skin right technique is an important point of gauge
तो राइट प्रोडक्ट और राइट टेक्निक से भी अच्छा बेस नहीं बैठेगा। सो ये तीनों चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। येस्टरडे नीतू मैम ने मेरे को बड़ा अच्छा सा एक पैलेट दिखाया मॉर्फी का, और मैंने उनको बोला नहीं नीतू मैम मुझे मालूम नहीं है मॉर्फी के ब्रशेस का कि वो उनके आजकल ब्रिसल्स कैसे आ रहे हैं। पहले के टाइम पे तो अच्छे आते थे, बट आज मैंने उसको फील नहीं करा है, सो आई हैव नो आइडिया। The brands which I have tried and they are very economic is called PAC, PAC. They have their own center in Lajpat Nagar and in Rajouri Garden. You only need 5 to 6 brushes, that's it. You don't need to have the full palette. Is that okay? Then let's talk about the right product. Right product का मतलब है जो फाउंडेशन आपकी स्किन पे एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक बैठता है, आपको गोरा या काला नहीं दिखाता है, पता ही नहीं चलता है कि आपने कुछ फाउंडेशन लगाया है आपकी स्किन पे, वो राइट शेड ऑफ फाउंडेशन होता है। इतनी सबको बात समझ में आती है? अब आप क्या करेंगे, आपको मैंने कुछ नोट्स दिए हैं, सबको वो नोट्स मिले? व्हाट इज अ फाउंडेशन, हाउ टू बाय फाउंडेशन, लोगों को भी नोट्स मिले, प्लीज एक बार पढ़िए और मेरा वीडियो देखिए जो मैंने वीडियो बनाया है, टाइम एनर्जी मेहनत सब लगा के बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया। अभी फटाफट से बैठ के देखिए, इसके बाद आप जाएंगे अपना प्रोडक्ट खरीदने, फाउंडेशन खरीद के लाएंगे, कंसीलर खरीद के लाएंगे, कॉम्पैक्ट खरीद के लाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे चित्रा ने मुझे बोला दैट आई डोंट वांट टू बाय यू नो MAC foundation, I do not want to buy Charlotte, anything you can buy, even Maybelline darling, आप Maybelline ले आइए, L'Oreal लेके आइए, बट लाना कैसे है, खरीदना कैसे है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बट एक फटाफट से समझा देती हूँ, आप जब भी जाएंगे आप अपनी इस एरिया पे 3 स्वॉचेस लगा के देखेंगे, अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलेंगे कि मुझे 3 आप शेड्स दिखाइए, एक मेरी बिल्कुल स्किन से मिलता हुआ, एक 1 शेड लाइट, एक 1 शेड डार्क, सो दैट आपको फाउंडेशन खरीदना आ जाएगा। कभी भी आप फाउंडेशन यहां या यहां नहीं लगाएंगे, नेवर एवर। इज दैट ओके? जो शेड आपकी स्किन पे बिल्कुल दिखाएगा नहीं कि आपने कुछ लगाया है, वो आपका ट्रू मैच होता है। आपकी आधी बैटल यही वन हो जाएगी, आप जीत लेंगे अपनी आधी जंग जब आपकी फाउंडेशन बिल्कुल ठीक बैठेगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन, एक लड़ाई आती है लोगों के दिमाग में, हाउ टू बाय अ कंसीलर आती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको नहीं पता कौन सा कंसीलर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मम्मा ने तो बोला था 1 to 1.5 शेड लेते हैं, कहीं लैक्मे पे पढ़ा था, किसी बुक में पढ़ा था, किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखा था। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ओके, बहुत लोगों के साथ होता है। चैट आ रही है फटाफट फटाफट, यस मी 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 मी, मेरे साथ होता है। ओके, सो कंसीलर्स क्या होते हैं? ऑल्दो मैंने दोबारा से बोल रही हूँ, इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, उसको जाके देखिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कंसीलर कभी भी फाउंडेशन के रंग के नहीं होते हैं। कंसीलर 2 तरीके के होते हैं, एक जो हमारी प्रॉब्लम को कवर करते हैं, 2 जो हमारे फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। दोबारा से समझा रही हूँ, कंसीलर्स 2 तरीके के होते हैं, एक जो हमारी प्रॉब्लम को कवर करते हैं, एक जो हमारे फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। और जो हमारे फीचर्स को हाईलाइट करते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्शन को भी लाइट करते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? कंसीलर क्या होते हैं, बस बाकी सब कुछ भूल जाओ जो आपको आज तक किसी ने भी बताया था। बेसिक से याद करो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसीलर, वन which covers our problem, second which highlight our features, and the highlighting concealers also brighten up our complexion to 2 or 3 shades. इतना सबको समझ में आया? Is that okay? Arushi, is that okay? Look here, is that okay? Great. Now, how will I always say कि मुझे कैसे पता चलेगा? I'm not talking about you. Let me tell about myself. अगर मैं एक लेमैन हूं जिसको मेकअप नहीं आता है और वो मेकअप खरीदने जा रहा है,
फाउंडेशन मुझे समझ में आ गया कैसे खरीदना है, कभी यहाँ नहीं ट्राई करना, कभी यहाँ ट्राई नहीं करना। कंसीलर यहाँ ट्राई नहीं करना, यहाँ ट्राई नहीं करना। कंसीलर मैं क्यों खरीदूं? अब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है मैं कंसीलर क्यों खरीदूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कंसीलर की जरूरत है? How will I get to know that I need a concealer? Whenever I apply a foundation, let me tell you my story. When I was in the age of 20s, I never used to apply a concealer, corrector, foundation, nothing. I only used to apply a product which is called cheek tint. Cheek tint आता है बीटरूट के कलर में, और मैं वो चीक टिंट लगा के जाती थी यहाँ पे, and everybody used to think that I am blushing, and I was very happy. यार अच्छा मेरे चीक्स हमेशा ही ब्लश पिंक रहते हैं। 20 इयर्स के बच्चे को कहाँ समझ में होता है उस टाइम पे कि यार उसको लग रहा है हाँ बस रेड रेड चीक्स हो गए एंड आई एम लुकिंग नाइस, लाइनर काजल लगाओ, आई एम हैप्पी, एंड आई यूज्ड टू लुक वेरी गुड एट दैट टाइम. Then slowly and gradually I came in the age of 25. I got married, and then slowly and gradually I became mom of twin kids. तो aging आने लग गई. When aging started coming, I used to apply foundation. You know what happened? My dark circles used to pop up. जब भी मैं फाउंडेशन लगाती थी मेरे को दिखाई देता था कि मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं. मुझे समझ में आया कि मुझे कंसीलर की जरूरत है. अगर ये आपकी भी स्टोरी है, अगर ये आपके साथ भी होता है, इसका मतलब आपको कंसीलर की जरूरत है. Whenever you apply a foundation and you can see your imperfections are popping out, that means, or popping up, that means you need a concealer. Now, next fight is how to buy a concealer. मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंसीलर मेरे लिए अच्छा है? कैसे खरीदते हैं कंसीलर? मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं मेकअप एंथुजियास्ट भी नहीं हूँ. मुझे 3 चीजें चाहिए, एक फाउंडेशन, एक कंसीलर, एक कॉम्पैक्ट, बस खत्म. कैसे कंसीलर खरीदते हैं? किसी भी ब्रांड में, दुनिया के किसी भी ब्रांड में कंसीलर इसी तरीके से खरीदते हैं. आप चाहे नार्स पे जाएं, चाहे मैक पे जाएं, चाहे एले गर्ल पे जाएं, हमेशा आपको बेयर स्किन जाना होता है. बेयर स्किन का क्या मतलब होता है? आपने अपने फेस को क्लीन किया, टोन किया, मॉइस्चराइज किया, सनस्क्रीन नहीं लगाया. सनस्क्रीन नहीं लगाना है क्योंकि कुछ सनस्क्रीन टिंटेड होते हैं. कितने लोगों का फेस सनस्क्रीन लगाने के बाद व्हाइट हो जाता है, और कितने लोगों को पसीना आने लग जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद, स्पेशली इस एरिया में. नीतू मैम को आता है. सनस्क्रीन में एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, और एक व्हाइट कलर का स्टार्ची एक मटेरियल होता है जिससे हमारा पूरा फेस व्हाइट हो जाता है. कुछ सनस्क्रीन्स में फाउंडेशन होती है, उस पे लिखा होता है, जैसे लोटस के सनस्क्रीन पे लिखा होता है टिंटेड सनस्क्रीन. टिंटेड का मतलब है थोड़ी सी फाउंडेशन का रंग या कलर उसमें डाला गया. प्लीज आप कभी टिंटेड सनस्क्रीन लगा के कंसीलर लेने नहीं जाएंगे. यू विल ऑलवेज गो बेयर स्किन. कैसे जाएंगे? अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके, टोन करके, मॉइस्चराइज करके जाएंगे. और मॉइस्चराइजर भी वो जिसमें कोई फाउंडेशन नहीं मिला है. इज दैट ओके? अब कैसे लेते हैं कंसीलर? कंसीलर को हमेशा हम अपनी प्रॉब्लमैटिक एरिया पे लगाते हैं. अगर वो कंसीलर हमारी प्रॉब्लम को कवर कर देता है, और हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? डार्क सर्कल, अनइवन स्किन टोन, एक्ने मार्क्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, या एक्ने के स्कार्स, या कोई बर्थ मार्क. यही है ना हमारी प्रॉब्लम्स, और तो नहीं है हमारी प्रॉब्लम. इसमें रिंकल नहीं आता, इसमें फाइन लाइन नहीं आती, इसमें लाफ्टर लाइन नहीं आती, ये नहीं आता. ठीक है, ये स्किन की कंडीशन होती है. स्किन की कंडीशन क्या है? मेरी स्किन इस टाइम 40s में चल रही है, ये मेरी स्किन की कंडीशन है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एज फैक्टर है. मैं शायद चित्रा के साथ या आरुषि के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकती खुद को, क्योंकि इन दोनों की स्किन बहुत यंग है. इनकी स्किन में फाइन लाइंस जैसी चीज अभी आई भी नहीं है. बट जैसे ही अपने 40s में आएंगे, जैसे ही एक मदर बनेंगे और ये सब ड्यूटीज निभाएंगे, तब दे विल स्टार्ट एजिंग, एंड देन दे विल स्टार्ट दे वांट टू टेक अ रिवर्स बैक, कि यार वापस चले जाते हैं. तो वो वापस है नहीं कहीं पे भी. देयर इज नो रिवर्स, कोई रिवर्स गेयर नहीं है लाइफ का. सो बट हाउ यू कैन डिले योर एजिंग? अगेन थ्रू योर स्किन केयर.
Let's talk about the concealer. Let not confuse you. The product which covers your problem and it conceals your problem. It hides your problem. Cover कर देता है आपकी हर problem को, वो आपका perfect shade होता है. Again, concealer को भी back of the hand पे या इधर try नहीं करते. इतना समझ में आ गया? कंसीलर्स बहुत तरीके के होते हैं. एक कंसीलर हमारा नॉर्मली जो अंडर आई एरिया होता है हमेशा ड्राई रहता है, सो आपको हमेशा इसको हाइड्रेट करके अंडर आई क्रीम या ऑयल लगा के अच्छे से एब्जॉर्ब करा के फिर जाना चाहिए कंसीलर खरीदने के लिए. अगर आप मेबेलिन के भी काउंटर पे जा रहे हैं तो मेबेलिन के 2 तरह के कंसीलर आते हैं. एक कंसीलर आता है जो फिट मी के नाम से है, एक कंसीलर आता है जिसका नाम है एज रिवाइंड. एज रिवाइंड कंसीलर्स मोस्टली उन लोगों के लिए होते हैं जिनको सिर्फ हल्का सा यहाँ पे येलोनेस रहता है, जिनको ब्राइटनिंग चाहिए. बट जिन लोगों को मेरी तरह, मेरे इफ यू कैन यू सी माई डार्क सर्कल्स, कैन यू सी दीज, मुझे फिट मी का कंसीलर नंबर 35 जाता है टू कवर माई डार्क सर्कल्स. मुझे एज रिवाइंड ना अच्छा लगता है ना मेरे ऊपर जाता है. Why? Because age rewind is only to pop up. They are kind of a highlighting concealer. They doesn't have any shade which will cover your problems like me. Is that okay? Chitra is saying Fit Me leaves a white cast. I'm coming on to that. First, understand how to buy a concealer. आप सबको मैंने रीडिंग मटेरियल दिया था हाउ टू बाय अ कंसीलर. अब आप जब मेरा रीडिंग मटेरियल पढ़ोगे और मेरा वीडियो देखोगे ना तो आप कनेक्ट बहुत अच्छा कर लोगे कि हाँ शिखा एक्सप्लेन द सेम थिंग व्हिच इज रिटन इन हर रीडिंग मटेरियल, व्हिच शी इज सेइंग इन हर वीडियो. सो फाउंडेशन कैसे खरीदना है? स्किन पे लगा के. जो शेड बिल्कुल ठीक से हमें मैच करता है हमारी स्किन टोन को, वो हमारा फाउंडेशन हो गया. सेकेंड पॉइंट आया कंसीलर कैसे खरीदना है. कंसीलर 2 तरीके के होते हैं, एक वो जो हमारी प्रॉब्लम को कवर करते हैं और एक वो जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को लाइट करते हैं और हमारे फीचर्स को भी हाईलाइट करते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, आपको बहुत कुछ और प्रॉब्लम्स भी है. फॉर एग्जाम्पल आपको रैश है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बर्थ मार्क है यहाँ पे या कोई पिगमेंटेशन हो गया है, तो आपको एक कंसीलर खरीदना है. वो फाउंडेशन कवर नहीं कर सकते. फाउंडेशन सिर्फ यूनिफॉर्मिटी देते, एक सार दिखती है स्किन एक जैसी, पर कंसीलर क्या करता है? प्रॉब्लम को छुपा देता है. ठीक है. अब दूसरी तरीके के कंसीलर के बारे में बात करते हैं जो क्या है? हाईलाइटिंग कंसीलर. हाईलाइटिंग कंसीलर मैं आपको दिखाऊंगी क्लास में. आप हाईलाइटिंग कंसीलर नहीं खरीदेंगे. मैं आपको टार्ट के TARTE अपने कंसीलर्स लेके आऊंगी, आपको ट्राई करवाऊंगी, आपको बताऊंगी कहां से खरीदने, आपको नंबर्स दूंगी, आपको शेड चेक करवाऊंगी, दिखाऊंगी कि कॉम्प्लेक्शन कैसे लाइट हो जाता है. आप लोग, कई लोगों को कॉम्प्लेक्शन लाइट बहुत अच्छा लगता है ना, फंक्शंस में भी अच्छा लगता है कि यार थोड़ा तो लाइट कर दो. सो कैसे लाइट आप खुद अपना मेकअप कर पाओगे वो मैं आपको आपका शेड बता दूंगी. इज दैट ओके? अब बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट कैसे खरीदते हैं. और कुछ लोगों को लगता है कि शिखा में हाइलाइटिंग कंसीलर फॉर एग्जांपल हम आपके वाला नहीं खरीदना चाहते, वो भी बता दो कि खरीदते कैसे. तो जो भी हाइलाइटिंग कंसीलर्स होते हैं वो आपको हमेशा अपनी स्किन पे लगा के देखने चाहिए. पहले अपनी प्रॉब्लम को करिए ताकि आपका हाईलाइट होने लग जाए, आपका कॉम्प्लेक्शन ब्राइट होने लग जाए. और इसका सारा वीडियो पूरा डिटेल में मैंने अपना रिकॉर्ड कर दिया है, उसको देखना. और मैक में मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर के शेड भी लिख दिए हैं कि हाइलाइटिंग कंसीलर NC होता है और मैक में कवरिंग कंसीलर NW होता है. क्यों ऐसा क्यों होता है? NW में, NC में येलो कलर है. जब हम कलर को बनाते हैं ना तो ये जितने भी मैक के प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी कंपनी अगर बनाती है तो उनमें ऐसे शेड्स डालती है. अब NW आप बोले क्यों लगा? चेंज और के कलर्स हैं. जब आप अपना कलर व्हील देखोगे, सबके पास कलर व्हील्स हैं. देखो आप एक बार अपने फोन में,
मैंने एक कलर व्हील भेजा था ना सबको, मेरी चैट में है ऐसा। कैन यू सी दिस कलर व्हील? सो जब भी हमारी प्रॉब्लम ब्लू पर्पल या पर्पल की होती है, तो हमारे ये कॉन्ट्राडिक्टरी शेड्स होते हैं। देखो, येलो, ऑरेंज, फिर धीरे धीरे रेड। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स हैं ये। सो इसमें क्या होता है, हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं ना, वो कभी ब्लैक कलर के नहीं होते, वो ब्लू, शेड्स ऑफ ब्लू, पर्पल ऐसे होते हैं। सो इनका कॉन्ट्राडिक्टरी कलर्स क्या होते हैं? ऑरेंज, येलो, रेड ऑरेंज, रेड येलो। सो जब भी हमें डार्क सर्कल्स हैं, तो हमें क्या लेना पड़ता है? रेड ऑरेंज कलर के वो कलर्स जिनके अंदर कंपनी बताने से अच्छा करके लेंगे। आज के बाद आप कोई भी बाइंग ऐसे नहीं करेंगे किसी के कहने पे, मेरे कहने पे भी नहीं करेंगे, आप खुद ट्राई करेंगे कंसीलर को। अब कहाँ पे ट्राई करेंगे? जहां आपकी प्रॉब्लम है, राइट? इतना सबको समझ में आया? सबसे पहले फाउंडेशन समझ में आई, फाउंडेशन से पहले स्किन केयर समझ में आया कि स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए। दूसरी चीज, कंसीलर क्यों लेना चाहिए? कंसीलर तब लेना चाहिए जब हम फाउंडेशन लगाते हैं और उसके बाद भी हमारी प्रॉब्लम्स दिखती है, दैट मीन्स हमें कंसील करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो हमें कंसीलर लेना है। कैसे खरीदते हैं कंसीलर? कंसीलर बेयर स्किन पे खरीदते हैं, लगा के ट्राई करके देखते हैं। कंसीलर दो तरीके के होते हैं, एक वो जो हमारी प्रॉब्लम को हाइड करता है, एक वो जो हमारी कॉम्प्लेक्शन को लाइट करता है। ठीक है, आज के बाद आप कभी बैक ऑफ द हैंड पे या इधर कंसीलर और फाउंडेशन नहीं ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कॉम्पैक्ट। जब हमारा फाउंडेशन ऑन पॉइंट है, हमें ट्रू मैच मिल गया है। ट्रू मैच क्या होता है? जो हमारी स्किन जैसा होता है, बिल्कुल हमारी स्किन जैसा। तब आप कॉम्पैक्ट का एक या दो शेड लाइट ले सकते हैं। You can go 1 or 2 shade light than your skin tone if your foundation color is true match. If you want to look little more bright, example, एक छोटा सा मैथमेटिकल एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है, उसका फाउंडेशन नंबर है NC25 इन मैक। आप 25 समझो, इट इज NC25 इन मैक, तो वो मेरा ट्रू मैच है। जब भी मैं कोई जैसे इंडियन फंक्शंस होते हैं जहां येलो लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैं NC25 कॉम्पैक्ट नहीं लगाती, मैं NC20 लगाती हूँ टू मेक माई फेस लुक मोर ब्राइट। अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना है या ब्रंच पे जाना है, जो मॉर्निंग का फंक्शन है या मॉर्निंग का इवेंट है, या अपने बच्चों के सिर्फ स्कूल तक ही पेरेंट्स मीट पे जाना है या उनके स्कूल में कुछ है, तो मैं सिर्फ NC25 लगाती हूँ, विच इज माई ओन स्किन टोन। मुझे ब्राइट नहीं लगना, आई वॉन्ट टू लुक माई ओन स्किन टोन। But whenever I want to look little bright and my foundation is on point, it is true match, then I can go a little lighter shade of compact. ठीक है? Now, how will you buy the compact? Tell your makeup artist wherever you are going, उसको बोलो मुझे कंसीलर भी खरीदना है, कॉम्पैक्ट खरीदना है और फाउंडेशन खरीदना है, चाहे लो या नहीं लो, पर ट्राई तो करो। वो आपको कॉम्पैक्ट भी दिखाएगा, वो आपको कंसीलर भी दिखाएगा, वो आपको फाउंडेशन भी दिखाएगा। द ओनली प्रॉब्लम इज वो आपको लगाएगा नहीं, बिकॉज ऑफ कोरोना। आप अपने घर से एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके जाना, एक वेट वाइप लेके जाना, बस, एंड यू अप्लाई ऑन योर ओन। कैसे लगाओगे? मेरे वीडियोस हैं आपके पास, खरीदना कैसा उसका वीडियो है। एक आप लोगों को मैंने अभी बोला मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ब्यूटी स्टेशन पे। ब्यूटी स्टेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है और अपलोड किया है, काफी टाइम हो गया, एवरीडे मेकअप। उसमें मैंने डॉटिंग टेक्निक्स बताई हैं कि किस तरीके से कंसीलर लगाते हैं, किस तरीके से फाउंडेशन लगाते हैं, वैसे लगा लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन को प्रिपेयर करके जाना। और कुछ लोग, मैं एक और अपने सेशंस में मुझे ये धीरे धीरे समझ में आया कि लेमैन जो होते हैं, या आप जैसे आप लोग हो, हम लोग तो फिर भी अब प्रोज हैं, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है अकेले जाने पे, चाहे मेरी क्लास अटेंड करी हो, चाहे साथ में कोई हो,
एक वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ जरूर जाना चाहिए या उनको बुलाना चाहिए जहां पे मैं भी जा सकूं। तो मैं कल जा रही हूँ सिटी वॉक साकेत, उसके साथ एक मॉल है DLF एवेन्यू। यहाँ पे आपको मैक, नायका, कीको मिलानो, मेबिलिन, लॉरियल सबकी हमेशा लेटेस्ट रेंजेस मिलती हैं कंपैरेटिवली टू एनीवेयर इन दिल्ली। तो मैं वहां जाती हूँ। मैंने अभी रिसेंटली में अपने स्टूडेंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा बोनस क्लास देनी शुरू करी है, जिसकी स्टोरीज भी आपने देखी होंगी। तो हम वहां पे जाके अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट मैक के ही होते हैं, वो इनको फाउंडेशंस लगाते हैं और दिखाते हैं शेड, और मैं इनको एक नॉडिंग होती है ना, कभी कभार हमें वो नॉडिंग चाहिए होती है, हाँ दिस शेड इज राइट। तो मेरी वो नॉडिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट यशिका देख लिया, आपका वीडियो देख लिया, समझ लिया, फिर भी जब आप साथ में खड़े हो तो वो एक लेवल आ जाता है, यू नो, कॉन्फिडेंस का, कि हाँ ठीक है, नाउ क्लोज योर आईज एंड शी इज देयर। So I'm always there whenever you buy your foundation, concealer and compact. I try to be there. So I'm doing that session tomorrow. If you want to come with me and if you are free, if it is feasible for you, so come. Okay? If it is not feasible for you, it's okay. नेक्स्ट बैच जब मेरा अप्रैल में आएगा, वो स्टूडेंट्स भी आएंगे, मेरी स्टोरीज पे ध्यान रखना, तब अप्रैल में ज्वाइन कर लेना। You can come in April on those dates to City Walk Saket or wherever I'm doing these kind of classes, and you can come and join me. Is that okay? But for that, you have to keep a check on my WhatsApp stories, on my Insta stories. Then only you will be in touch with me. और उसके बाद मुझे एक WhatsApp drop करना and I'll call you. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर इस क्लास के लिए जो है 25th और 26th को मैं 3-3 घंटे दे रही हूँ। हो सकता है हम हो जाए, सो आई हैव नो इश्यू, हो जाए 5 हो जाए, आपको बात समझ में आनी चाहिए। और उसी के लिए मैंने आज एक ऑनलाइन सेशन आप लोगों के साथ रखा है कि प्लीज वो वीडियो देखिए। फाउंडेशन लेके आना ही आना है क्लास में, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट। कंसीलर उनके लिए है जिनको जरूरत है खरीदने की, जिनकी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है, सिर्फ फाउंडेशन से ही उनका काम चल जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको खरीदना है कंसीलर। इज दैट ओके? अभी मैंने समझाया अभी कि कंसीलर किनको जरूरत होती है, जब हम फाउंडेशन फेस पे लगाते हैं और हमारी प्रॉब्लम ज्यादा दिखने लग जाती है, इसका मतलब है हमें कंसीलर चाहिए। कॉम्पैक्ट, एक मेरे को मैसेज आया था अभी कि मेरा फाउंडेशन जब भी मैं फोन पे बात करती हूँ तो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। सो यहाँ ट्रांसफर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सेट नहीं किया गया है कॉम्पैक्ट से, इसीलिए ट्रांसफर हो जाता है। वो ट्रांसफर नहीं होगा जब आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना भूल गई, जिन लोगों को भी डार्क सर्कल्स हैं, जिन लोगों को भी ब्लेमिशेस हैं, जिन लोगों को भी पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, सिर्फ कंसीलर कई बार हेल्प नहीं करेंगे। कंसीलर करने के बाद भी आपको थोड़ी देर के बाद ऐसा लगेगा कि मेरे डार्क सर्कल्स ना हल्के हल्के दिखने लगते हैं, ऐसा होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो कंसीलर के शेड्स हैं उसके अंदर रेड और ऑरेंज की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको कम डाला जाता है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर्स होते हैं जिनको बोलते हैं करेक्टर्स। सुना है आपने पहले कभी करेक्टर्स? What are correctors? क्या होते हैं correctors? Correctors are nothing. They are shades which neutralize your problem for some time. कुछ देर के लिए ये आपकी प्रॉब्लम को कम दिखाते हैं, बट करेक्टर्स कभी भी कंसीलर्स नहीं होते। करेक्टर्स थोड़ी देर के लिए आपकी प्रॉब्लम को कम तो कर सकते हैं पर कवर नहीं कर सकते। सो जिन लोगों को भी फाउंडेशन के बाद लगता है कि मेरी स्किन में डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग, तो द आंसर इज यू नीड अ करेक्टर एंड यू नीड अ कंसीलर। ठीक है? अब इसमें भी एक बहुत बड़ी बैटल है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ करेक्टर्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू हैव प्रॉब्लम like acne marks, you have like dark circles, if you have problem like pigmentation, uneven skin tone,
and your problem is intensified, means बहुत डार्क प्रॉब्लम है, एक बर्न है, बर्न मार्क है, फॉर एग्जाम्पल कुछ हम तल रहे थे और यहाँ पे आ गया और जल गई वो स्किन, और वो बर्न मार्क काफी टाइम से है, वो डार्क कलर का है, तो हमें कौन सा करेक्टर चाहिए शिखा? तो शिखा ने आपको एक कलर व्हील भेजा था, वापस से अपना कलर व्हील देखिए, जो कि ये रहा। अगर आपकी प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल रेड कलर की है, रेड कलर की प्रॉब्लम मेरे को कोई बता सकता है कैसी होती है? जैसे रैशेस जो गर्मियों में हो जाते हैं, जैसे एलर्जी जो गर्मियों में हो जाती है, जैसे एक्ने जो गर्मियों में हो जाते हैं, जैसे जिट्स जो गर्मियों में हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने, जैसे बॉयल्स, बॉयल्स होते हैं पिंपल्स जिसमें ब्लड और पस दोनों होता है। ओके, तो वो कैसी प्रॉब्लम है? रेड कलर की। रेड का कॉन्ट्राडिक्टरी कलर देखो क्या है? ग्रीन। तो हमें कौन सा चलेगा कलर करेक्टर में? ग्रीन। ओके, सो यू कैन राइट ऑल्सो राइट नाउ इफ यू वांट। मैं आपको ये वाला करिकुलम दूंगी 25th और 26th टाइम भी लेना। रेड प्रॉब्लम्स, एक्ने, एक्ने जिट्स, बॉयल्स, रैशेस, अरिथमा इफेक्ट, तो उसके लिए हमें ग्रीन करेक्टर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स की, जो कि कौन से कलर में? ब्लू पर्पल, तो हमें कौन सा करेक्टर चलेगा? शेड्स ऑफ पीच, ऑरेंज, येलो, येलो ऑरेंज। कैसे पता चलेगा? अगर आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे पर्पल कलर के हो रहे हैं या डार्क कलर होता जा रहा है, डीप होते जा रहे हैं, तो आप पीच नहीं लगा सकते। ओके, अगर आपका, जैसे अभी मैं नीतू मैम का देख पा रही हूँ, उनको डार्क सर्कल्स की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नीतू मैम चलेगा पीच। नीतू मैम को ऑरेंज खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑरेंज खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे डार्क सर्कल्स इतने इंटेंसिफाइड नहीं है। अगर कभी आपके डार्क सर्कल स्लोली एंड ग्रेजुअली, किसी टाइम आप नहीं सोए हो, आपकी वेडिंग है या घर में फंक्शंस थे या यू वर इल फ्रॉम लॉन्ग, तो आपके डार्क सर्कल्स ना बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं। एट दैट में आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए? या मुझे कभी अगर मैं बीमार हो जाती हूँ और मेरे को बहुत डार्क लग रहा है आईज के अराउंड, तो पीच नहीं चलेगा तब। आई नीड टू अप्लाई ऑरेंज, आई नीड टू स्विच ऑन टू ऑरेंज। It is as simple as that. Have lost your weight, so what you wear? You start wearing the reduced sizes ना, आप एक्सेल से लार्ज आ जाते हैं, फिर मीडियम आ जाते हैं, फिर एक्सेस आ जाते हैं। ऐसे ही मेकअप में होता है। अगर आपके डार्क सर्कल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो आप ऑरेंज से पीच पे आ जाओगे, पीच से लाइट पीच पे आ जाओगे, राइट? और अगर आप लाइट पीच पे हो इस टाइम पे और धीरे धीरे आप ध्यान ही नहीं दे रहे, यू आर always into digital thing and you are not doing digital detox, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा? डार्क सर्कल्स इंटेंसिफाई हो जाएंगे, डार्क दिखेंगे ज्यादा, सो तब पीच कलर को छोड़ के ऑरेंज पे जाएंगे। अगर आपको एक्ने मार्क्स है, आप इस एरिया का कभी ध्यान ही नहीं रखते, ये एरिया काफी डार्क है, तो यहाँ पे पीच नहीं लगा सकते क्योंकि एरिया तो डार्क है ना, तो डार्क पे डार्क ही लगाएंगे। हिंदी में कहावत किसी ने सुनी है? जहर को जहर काटता है, सुनिए, सुनी थी ना स्कूल में, कोई एक कहानी में जहर को जहर काटता है, उसकी बड़ी सारी हम वाक्य बनाते थे, सेंटेंसेस। सो ऐसे ही अगर हमारे ये एरिया डार्क है, तो यहाँ पे लाइट कलर का करेक्टर नहीं चलेगा, इट वोंट वर्क। So what will work? A deep color corrector will work for your deep color problem. It is as simple as that. Is that clear? If your problem is of light color, you will use light color of corrector. If your problem is intensified and deep color, then you will use deep color corrector. Okay. Now, what are deep color correctors? You have to see to your color wheels always. If your problem is of red color, then you will go and intensify red color. Then you will go for deep color of greens. Greens में भी varieties आती हैं. Mint green, green, light green, bottle green. These are different shades of characters. Peach, light peach, orange, deep orange, medium orange,
रेड ऑरेंज, मेहरून, इस तरीके से कलर आपको वेरिएंट्स दिखाई देंगे, ठीक है। ऐसे ही कंसीलर्स में भी होता है। अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे, किसी ने वैसे पूछा नहीं, कि शिखा मेरा फेस बहुत पीला है फॉर एग्जाम्पल, या अगर शिखा कभी हमारा फेस डल लग रहा है तो कौन सा करेक्टर करेंगे? हमारी प्रॉब्लम है येलो, हमारा फेस दिख रहा है पीला, ठीक है, या मैं जॉन्डिस, फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉन्डिस लगाऊंगी और मुझे किसी के फंक्शन पे जाना है, सो कॉन्ट्राडिक्टरी कलर क्या है? पर्पल। तो मैं क्या करूंगी? पर्पल कलर का करेक्टर करूंगी। कहाँ पे? जहां पे मेरा फेस ज्यादा येलो दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे चीक्स अगर बहुत डल लग रहे हैं तो मैं क्या लगाऊंगी? लैवेंडर कलर का करेक्टर। यहां तक आपको समझ रहा? आर यू देयर विद मी? हेलो, इज दैट ओके? अभी तक कोई कंफ्यूजन है? अब हम यहाँ इसके बाद एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि फाउंडेशन भी हमने ठीक लिया था, सब कुछ तो ठीक था, फिर भी जब हमारी पिक्चर्स खिंचती हैं तो फ्लैश बैक आता है। फ्लैश बैक समझते हो? कभी कभार हम फंक्शन में देखते हैं कि जब हम पिक्चर लेते हैं तो यहाँ तक का एरिया फेस पूरा ऐसे बाहर आ रहा होता है व्हाइट, पर जब हम आई टू आई देखते हैं तो वो ठीक ही लग रहा था। फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है जब आप अपनी फाउंडेशन को काफी लाइट टोन का खरीदते हैं या लगाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, कभी कभार जब हमने फाउंडेशन हमें अपने हिसाब से हमें लगा हमने तो ठीक खरीदी थी, कंसीलर भी लगाया था, करेक्टर भी लगाया था, फिर भी ये एरिया ग्रे हो गया। कई लोगों के साथ ये एरिया ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसके दो रीजंस होते हैं, इनफैक्ट तीन। पहला रीजन होता है कि आपने अपना करेक्टर का कलर रॉन्ग चूज किया। आपको करेक्टर का कलर लेना था शायद ऑरेंज या डीप ऑरेंज या रेड, और आपने कलर क्या ले लिया? पीच, या आपके पास था ही नहीं। दूसरा, आपने फाउंडेशन का कलर बहुत लाइट लगाया, अपनी स्किन टोन का नहीं लगाया। थर्ड, आपका कंसीलर का शेड एप्रोप्रिएट नहीं था, उसने आपकी प्रॉब्लम को कवर किया ही नहीं। बस, इसके अलावा और कोई रीजंस नहीं होते हैं जिसकी वजह से आपका मेकअप ग्रे पड़ता है। अब इसके बाद बात करते हैं, कई लोगों का मेकअप सब कुछ करने के बाद भी ड्राई, केकी और पैची हो जाता है। उसके क्या रीजंस होते हैं? उसके भी तीन रीजंस होते हैं, इनफैक्ट चार। सबसे पहला रीजन होता है आपका मेकअप ड्राई, केकी और पैची क्यों होता है? आप अपनी स्किन केयर पे ध्यान नहीं देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं और नीतू मैम, हम लोगों को अपनी स्किन को हाइड्रेट अच्छा करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बिकॉज ऑफ एज कम हो रहा है। हमें अपनी स्किन पे ऑयल लगाना पड़ता है ताकि हमारी स्किन स्मूथ दिखती है। हमें फेशियल्स करवाने पड़ते हैं क्योंकि हमारी स्किन एजिंग पे जा रही है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप फट जाएगा। ओके, so if your skin is dehydrated, you need to take care of your skin, but after we enter in our 40s, our skin starts deteriorating on a higher speed बढ़ जाती है। तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए 3D रोलर्स, फेशियल्स, गुआशा सब कुछ करना पड़ता है। Everyone wants to look good, isn't it? So if your skin goes dry, dull and dehydrated, I should not say dull, if it goes dry, dehydrated and your makeup goes patchy, what you have to do? First thing, you need to apply 24 karat gold oil after doing your toner. Second, apply are very good. What are they? Primers give you a kind of a shield, a kind of a wall in between your skin and your foundation.
प्राइमर्स जब लग जाते हैं तो फाउंडेशंस बहुत डीप तक आपकी स्किन में जाके आपकी स्किन को इन द लॉन्ग रन डैमेज नहीं कर पाता, बिकॉज प्राइमर की शील्ड रहती है। और प्राइमर्स हाइड्रेटिंग होते हैं। हाइड्रेटिंग मतलब आपको सूदिंग इफेक्ट देते हैं, स्पेसिफिकली जिनकी मेकअप काफी ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाता है। स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, योर हाइड्रेटिंग primers are very important. Third, your foundation. Okay, what you have to do, you have to mix 1 drop or half a drop of oil in your foundation, and your makeup will never go dehydrated or patchy or cakey. And less is more. ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाने का है, फाउंडेशन को कम लगाएंगे, लेस इज मोर। सो हम क्या लेंगे, मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज। मीडियम क्या होता है, नीतू मैम या चित्रा, दे आर बेसिकली फाउंडेशंस जब आप 1 या 2 ड्रॉप लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी कवरेज मिलेगी, जब आप 4 से 5 ड्रॉप लगाएंगे तो फुल कवरेज हो जाएगी। कई फंक्शंस में हमें सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप ही लगानी होती है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल गेट टुगेदर जहां पे 20-30 लोग हैं, तो फुल कवरेज क्यों दिखाएं कि हमने बहुत मेकअप करा हुआ। When the gathering is of 500 for example and we need to cover, we need to look decked up, right? Then we will apply 4 to 5 drops of foundation, but on a daily basis 2 or 3 drops is more than enough. So medium to buildable foundations are very good, but do not buy full coverage foundation for a daily basis. If you are working like me, please do not apply foundation on a daily basis. I will teach you how to do no makeup look. No makeup look में मेकअप होता है पर लगता नहीं है कि मेकअप है, ऐसा लगता है स्किन है। I'll teach you that technique also. पर मैं वो टेक्निक सिखाऊंगी कैसे, क्योंकि कुछ लोग तो प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे हैं। How will I teach you? You have to have basic products. What are the basic products? Basic wet wipes लेके आना, moisturizer लेके आना, foundation, corrector, concealer, and a compact or a translucent powder. You still have days you need to buy. Okay? Beauty blender लगेगा ही लगेगा। एक और चीज जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क करके लाऊंगी, वो ये है, बहुत सारे लोगों के पास शैडो पैलेट्स नहीं है। My own palettes for your practice. You don't worry. I will get Huda Beauty palettes. I will get Morphe palette. Get Forever 52 palettes for your practice. I will sanitize it. Then I will give it to you. And whenever I will take back, I will sanitize it. Is that okay? So अगर आपके पास आई पैलेट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेके आना। जिनके पास आई पैलेट्स नहीं है, do not invest money. पहले मेरी पैलेट से प्रैक्टिस कर लेना, ब्रशेस अपने लेके आना। ब्रशेस आई वोंट बी प्रोवाइडिंग। ओके, इज दैट ओके? नेक्स्ट, व्हाट आर द ब्रशेस, या ब्रश कौन सा लाना चाहिए? PAC का एक आता है आई सीरीज, लिख लो, EYEI सीरीज, SERIES, आई सीरीज। इसमें आपको 3-4 ब्रशेस बस चाहिए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। प्लीज मत खरीदना। एक आई एप्लीकेटर ब्रश, एक ब्लेंडिंग ब्रश और एक कॉर्नर्स बनाने का ब्रश, ठीक है? और आपका एक आईब्रो का ब्रश आता है, और एक अगर किसी को लाइनर का ब्रश चाहिए, तो ये होते हैं टोटल 4 ब्रशेस या मैक्सिमम 5। इससे ज्यादा ब्रशेस की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, फेस के लिए कितने ब्रशेस चाहिए? फेस के लिए बस 2 ब्रशेस चाहिए, एक ब्लशर ब्रश और एक कॉन्टोर ब्रश, और कुछ नहीं चाहिए। टोटल हमारे कितने ब्रशेस हो गए? मैक्सिमम 7 ब्रश, खत्म। चाहिए ही नहीं कोई 3rd 8th ब्रश नहीं चाहिए आपको। इतने ब्रशेस आर मोर देन इनफ। ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा गीला करके या उसके रिव्यूज पढ़ के खरीदना। जो ब्यूटी ब्लेंडर्स गीला करने के बाद स्वेल अप नहीं होते हैं इन डबल द साइज, या फिर सॉफ्ट नहीं होते हैं दबाने पे, हार्ड होते हैं,
प्लीज डू नॉट बाय देम. बाय PAC और बाय रियल टेक्निक्स और बाय नायका ब्यूटी ब्लेंडर. नायका पे सब कुछ अवेलेबल है, नायका से मंगा लो. लिख लो, प्लीज लिख लो. और नायका तो एक्सप्रेस डिलीवरी भी दे रहा है, विद इन 2 डेज सामान आ जाएगा. और अगर कोई भी डाउट है तो कल खरीद लेंगे. वी आर गोइंग टू मैक DLF एवेन्यू, साथ में ही नायका का स्टोर है, सो नायका से ले लेना. ठीक है, ग्रेट. सो ब्यूटी ब्लेंडर्स कौन से अच्छे हैं, मैं कौन से रिकमेंड हूँ? PAC, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी गुड ब्यूटी, क्लासिक ब्यूटी ब्लेंडर 495 का है. सारे होंगे वो लाजपत नगर से वापसी में जाते हुए ले सकते हैं. आई गिव यू द नंबर ऑल्सो ऑफ द PAC शोरूम. ठीक है, लाजपत नगर में मेन रोड पे. देन अगर कोई रजौरी में है, रजौरी मार्केट जाने वाला है, या कोई जाने वाला है आपके घर से, तो आप उनको बोलो PAC के काउंटर से, मेन मार्केट में PAC का शोरूम है, वहां से प्लीज मेरे लिए ये सामान ले आना, बस. एंड यू गेट आई गेस 5% डिस्काउंट ऑल्सो इफ यू पे देम थ्रू कैश. 5% या 10%, आप बात कर लेना, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं. PAC देता है आपको डिस्काउंट. दूसरी चीज, जो लोग अपना मैक पे अगर कल आ रहे हैं मेरे साथ, तो अपना शॉपर स्टॉप का कार्ड जरूर लेके आना, अपने पॉइंट्स ऐड करवा लेना जो भी आप खरीदते हो, बिकॉज मैक इज अ शॉपर स्टॉप डिवीजन. ओके. और अगर आप अपने आप जा रहे हैं, मेबेलिन, लॉरियल, मेकअप रेवोल्यूशन, कुछ भी खरीदने, तो मेरे ये पॉइंट्स दिमाग में रख के लेके जाना कि इसी तरीके से खरीदना है. और जल्दी मत करो, आज मंडे है, कुछ मार्केट्स बंद होंगी. एरिया पता करके जाना, और पहले वीडियो दोबारा देख लेना मेरा फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट का, फिर खरीदना. कल चले जाना. क्लास तो अभी भी थर्सडे फ्राइडे की है ना. इज दैट ओके? बट जो भी बिगिनर्स हैं, प्लीज ध्यान लगा के सुनिए. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मैक में इन्वेस्ट करें. आप मेबेलिन लेके आओ, बट लेके आओ. क्लास ऐसे नहीं हो पाएगी आपकी. इफ यू वांट टू ओनली लुक एंड लर्न, सिर्फ बैठ के ऐसे देखना ही है, देन इट इज ओके. आई हैव नो इश्यूज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब आप करेंगे ना घर जाके और आपसे मेकअप होगा नहीं, then you will cry. Okay, so next very important thing, those whoever are attending my personal makeup workshop and they are listening to me right now, do not buy translucent powders. Do not buy it. आप सिर्फ एक कॉम्पैक्ट खरीदिए. ट्रांसल्यूसेंट पाउडर मैं आपके लिए लेके आऊंगी लॉरा मर्सियर का. इट इज गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, और ये आपकी लाइंस में कभी फंसता नहीं है. I will get it for you. You don't invest in translucent powders, because जो translucent powders आप लाएंगे ना, उसमें टैल्कम होता है. वो टैल्कम पाउडर का बेस होता है, और जब आप यहाँ लगाएंगे अपने आई मेकअप का फॉल आउट बचाने के लिए, तो आपकी पूरी फाइन लाइंस में फंस जाएगा और फाइन लाइंस दिखने लग जाती है. I will get Laura Mercier, the high-end product for all of you for your practice. और मेरी टीम या मैं आपको वो लगाएंगे ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, फिर आप अपने आई मेकअप की प्रैक्टिस करना. आप अपने डेली रूटीन के लिए सिर्फ कॉम्पैक्ट खरीदेंगे, विच इज मोर देन इनफ. पहली चीज. दूसरी चीज, जिनको भी फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं मेरी तरह, मैं आपके ऊपर नहीं, किसी को नहीं बोल रही हूँ, मुझे है, सो मैं अपनी बात करती हूँ. जब भी मैं रेडी होती हूँ घर पे या स्टूडियो में भी अपने रेडी होती हूँ, मैं हमेशा अपनी आईज पहले कर लेती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट गिरता है तो मैं उसको क्लीन कर सकती हूँ. पर जब मैं पूरा फेस का बेस कर लेती हूँ और फिर हटाने की कोशिश करती हूँ, ऑल्दो मेरे पास ट्रांसल्यूसेंट पाउडर होता है, बट जब ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लगाती हूँ तो मेरी फाइन लाइंस दिखने लग जाती है. तो मैं क्या करती हूँ, पहले आई मेकअप करती हूँ, उसके बाद अपना पूरा जो भी फॉल आउट होता है उसको क्लीन करती हूँ, अंडर आई क्रीम लगाती हूँ, और फिर अपना मेकअप करती हूँ. तो मेरी फाइन लाइन ज्यादा दिखती नहीं है, जितनी है वो दिखती हैं. मैं रेडी होके भी आऊंगी क्लास में, तो भी आप देखोगे कि मेरी फाइन लाइंस, रिंकल्स दिखेंगे. कई लोग हमारे स्टूडियो में आते हैं और मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलते हैं ये हटा दो, ये दिखना नहीं चाहिए. तो हम बोलते हैं हम हटा कैसे सकते हैं?
तो वो हमें बोलते हैं कि पिक्चर्स में कैसे नहीं दिखता मेकअप आर्टिस्ट के, उनमें उनकी तो लाइन नहीं दिखती। तो हम बोलते हैं मैम वो एडिटिंग होती है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पिक्चर देखी होंगी जहाँ पे एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही थी जेनिफर लोपेज की, जहाँ पे दिख रहा था कि व्हाट इज रियल पिक्चर एंड व्हाट इज रील पिक्चर। रील पिक्चर होती है जहाँ पे पोर्स हटा दिए जाते हैं, जहाँ पे ये जो हमारी लाफ्टर लाइन होती है इसको हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एक्ने का मार्क है, इसको हटा देंगे और बिल्कुल पोर्सिलिन स्किन कर देंगे। दैट इज कॉल्ड एडिटिंग। जहां पे मेरे पोर्स दिख रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइन लाइंस, कैन यू सी देम, जहां भी मेरी फाइन लाइंस दिख रही हैं तो वो दिखेंगी। whenever I also get ready, my husband tells me, Shikha, you are aging. So I said, yes, I am aging, and I am aging very gracefully, you know. So जितना, अब for example मेरे white बाल है, हाँ मैं टच अप कराती हूँ, of course कराती हूँ। मेरी एजिंग हो रही है, आज नहीं तो कल मैं भी बोटॉक्स करा लूंगी सो दैट मेरी स्किन भी लिफ्टेड दिखाई दे, पर वो आज मुझे इतनी जरूरत नहीं है। मे बी व्हेन आई विल हिट 50 और 55 आई विल गो फॉर बोटॉक्स, आई विल गो फॉर सर्जरीज, पर आज नहीं, मुझे आज नहीं कराना। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड, आई विल बी कंप्लीटिंग माय 40 इन दिस ऑगस्ट, तो अभी मैं क्यों कराऊं? अब मैं गुआशा से अपना काम चला लेती हूँ, अभी मैं रोलर से चला लेती हूँ, अभी मैं मसाजेस से चला लेती हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। Because you know, once you start taking Botox, then you can't go back. You have to, you get addicted to it like drugs. क्योंकि एक बार जब बोटॉक्स आ जाता है ना, तो आपकी आईज ऐसे हो जाती है, लिफ्टेड। Do not like or anything else. So I also do not want कि मेरी आईज droopy दिखाई दे. So for all those people who are having fine lines and wrinkles, you can't, you know, ignore them. You have to apply concealer, you have to apply each and everything so that your dark circle should cover up. But if you think that concealer can erase your wrinkles, you are on a wrong track. They can't. Okay? यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब हम बात करते हैं कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग क्या होती है और शेडिंग क्या होती है, क्यों करनी चाहिए? अगर आपका मेरी तरह फेस है हैवी, चीक से हैवी, और जैसे मेरी ये जॉ लाइन दिखती नहीं है, यहाँ पे फैट है, तो मैं यहाँ ये भी कॉन्टोर करती हूँ। Although I think every girl is beautiful the way she is, but my husband is a fashion photographer, so he tells me ये दिख रहा है तुम्हारा पिक्चर्स में, प्रोफेशनल कैमरा में, इसको हाइड करके आओ। तो अभी मैं कैसे हाइड करूं? I can't take knife and I can't scrape it, no. So I put, you know, contouring shades on the hollow of my face, and then it looks much better in pictures. So this is called shading and highlighting. तो अब कई लोग बोलेंगे हम ले आए highlighting product, shading product, नहीं, मत लाइए। I will get different products from different companies for you to see. ठीक है? उसके बाद आपको उसमें से जो अच्छा लगे आप प्रैक्टिस भी कर लेना। ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जिस बजट में जो आए वो ले लेना। I will be telling you कौन सी स्किन पे क्या चलेगा, पर अभी रॉन्ग प्रोडक्ट बाय नहीं करो। सो अब हमें क्या क्या चाहिए होगा बेसिक क्लास के लिए? हमें वेट वाइप्स चाहिए, ओके हमें एक और चीज, हमें वेट वाइप्स चाहिए, कॉटन बड्स चाहिए होंगी, कॉटन बड्स लेके आना, रोज वाटर अगर हो तो लेके आना, ओके मैं दे दूंगी। फाउंडेशन, कंसीलर इफ यू नीड, अगर मैं सबसे मिली नहीं हूँ आप सबसे ऐसे फेस टू फेस, तो अगर लगता है कि कंसीलर की जरूरत है तो कैसे देखना है उसका एक वीडियो है, देख के खरीद के आना। कंसीलर, कॉम्पैक्ट, करेक्टर, जिसको जो जो चीज की जरूरत है वो लेके आना। बेसिक ब्लशर, जिनके पास बेसिक ब्लशर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट वरी यार, डोंट वरी, घर में लिपस्टिक तो होगी ना एक पिंक पीच कलर की, बस 2 लिपस्टिक ले आना, ठीक है? और कुछ मत, नहीं मन है खरीदने का मत खरीदना। नहीं तो ऐसे करेंगे कि मैं कुछ शेड्स लेके आऊंगी, आप ट्राई कर लेना, ठीक है? हाइलाइटर, हाइलाइटर आपने देखा है गोल्ड बीम आती है जिससे बहुत ग्लो आ जाता है, वो भी मैं लेके आऊंगी सो दैट यू ऑल कैन ट्राई। वो भी आप नहीं खरीदना।
So do not invest too much money on makeup buying. Please, brushes खुद लेके आना प्रैक्टिस के लिए. मैं अपने ब्रशेस नहीं दूंगी, बिकॉज वो प्रैक्टिस करते हुए ना खराब हो जाते हैं. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट. पापा बोलते थे, आप लोगों के भी, मेरे भी बोलते थे कि प्रैक्टिस करनी है ना कार पे. मैं अपनी कार नहीं दूंगा, मैं नई कार नहीं दूंगा, पुरानी कार पे प्रैक्टिस कर लो ड्राइवर के साथ. मैं नहीं दूंगा. सो मैं नहीं दूंगी ब्रशेस. अपने ब्रशेस खुद लेके आओ. ठीक है. आई शैडो की पैलेट्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पैलेट्स मैं लेके आऊंगी. ठीक है. हुडा ब्यूटी, फॉरएवर 52, मॉर्फी, टू फेस्ड, ये बहुत अच्छी पैलेट्स है. ये सब मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए. आप टेंशन मत लो, पर ब्रशेस आप लेके आओगे. ओके, इज दैट फाइन? नेक्स्ट, अपने अपने सबकी उसमें हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए. हैंड सैनिटाइजर स्प्रे should be there in your kit. Okay. Then your basic lip liner, कोई भी लिपस्टिक की पेंसिल जरूर लेके आना. लिपस्टिक जरूर लेके आना. बेसिक मस्कारा, मस्कारा सबके पास होगा ना, मस्कारा लेके आना बस. आईब्रो प्रोडक्ट आई विल गेट फॉर यू, दैट टू ऑफ एनास्टेसिया. मैं लेके आ, मैं सबके लिए ले आऊं. मैं अलग अलग चीजें लेके आऊंगी. मैक की भी लाऊंगी, एनास्टेसिया की भी लाऊंगी. मैं बेनिफिट की भी लाऊंगी. ठीक है. सो डोंट वरी. अगर किसी के पास लिप लाइनर नहीं है, कोई बात नहीं, मत लाओ. बेसिक लिपस्टिक होगी ना, बस लिपस्टिक ले आना. लास्ट डे जो हमारा 26 है, आप किस तरीके के रेगुलर रूटीन में या फंक्शंस जब होते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हो, वो पहन के आना. so that I can help you in achieving the look which you should carry. Okay. Next, आप सबके लिए एक और चीज है. अभी दो चीजें और है. सबसे पहली चीज है हाउ टू अप्लाई लैशेस. हम इस कोर्स में करा रहे हैं. इट इज अ वेरी गुड थिंग. पर लैशेस या तो आप लेके आना या मुझे मैसेज कर देना कि शिखा आई कांट गेट इट, यू गेट इट, आई विल पे यू फॉर दैट. आप हमें वो लैशेस की पेमेंट दे देना. लैश कैसे लगानी है वो हम बहुत easy तरीके. You don't have to get any more glue and apply your lashes like this within fraction of a second. I will get lashes. If you want, you can pay my team for that. Arushi is saying network issue. I guess can't hear you. I hope so everyone can hear me. सबको सुनाई दे रहा है? Can you give me a thumbs up if you can hear? हाँ, you can hear me? You can't speak. You can't speak. You can't speak. अच्छा, Chitra is saying no. Guys, can you hear me? Arushi, can you hear me now? Yes. Chitra, yes. Now you can hear me. Okay. So I was saying कि lashes में हम lashes arrange करके अगर आप बोलोगे तो हम सबके लिए एक pair of lashes लेके आएंगे. You can pay my team for that. Is that okay? कितने पैसे देने होंगे आप कुछ लोग पूछेंगे. तो जो भी हम लैशेस प्रोक्योर करेंगे, कोशिश करेंगे वो 100-150 की हो, इससे ऊपर ना हो. ठीक है. अगर होंगी भी तो आपको बता देंगे. उसके लिए आपको कोई ग्लू नहीं लानी, कुछ नहीं लाना, हम लेके आएंगे. एंड आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई लैशेस लाइक दिस. वेरी इजी, इन अ वेरी इजी मैनर. ठीक है. यहां तक बात समझ में आई? मस्कारा तो लेके आओगे. गेट योर काजल. अच्छा, मैं आप सबके लिए एक और थोड़ी सी फंकी चीज भी लेके आ रही हूँ. आई एम गेटिंग कलर्ड आईलाइनर्स फॉर योर प्रैक्टिस कि ब्लैक आईलाइनर के ऊपर कलर आईलाइनर कैसे लगता है. स्वाति सिंह, हाउ अबाउट मैग्नेटिक लैशेस? यस स्वाति, यू कैन गेट मैग्नेटिक लैशेस. आजकल मैग्नेटिक लैशेस भी आई हैं. सो मैग्नेटिक लैशेस में क्या होता है, एक लैश ऊपर होती है, एक लैश नीचे होती है और वो स्टिक हो जाती है अपने आप. आई विल शो यू हाउ इट इज. ठीक है, क्लास में दिखाऊंगी. पर अगर बेसिक लैश है, क्योंकि मैग्नेटिक लैशेस
1000 rupees तक की आती है. Everybody, you know, they really don't want to invest. So what am I doing? I am bringing very good bandless lash. Bandless क्या होता है? उसका band दिखता नहीं है, बहुत लाइट होता है. मैं वो लैश लेके आऊंगी और एक लाइनर लेके आऊंगी जो आप लाइनर लगाएंगे और उसके ऊपर आपकी लैश चिपक जाएगी. ठीक है. Swati is asking, is glue safe for the eyes? I'm not applying any glue, darling. लाइनर लगाएंगे, लाइनर के ऊपर हमारी लैश स्टिक हो जाएगी. कोई भी लैश, दुनिया में कोई भी लैश, चाहे प्लास्टिक गंदी लैश भी होगी प्रैक्टिस के लिए, तो वो चिपक जाएगी. ठीक है. किडले की भी गंदी होगी तो भी चिपक जाएगी. बट हम अच्छी लैशेस लेके आएंगे आप सबके लिए. अगर आपको चाहिए हो तो हमें बता देना. अच्छा, अब हम नेक्स्ट सरप्राइज तो रहेगा नहीं अभी, जब भी मैं बता दूंगी तो. बट आई वांट स्मॉल फेवर्स फ्रॉम यू. दे आर माय स्टूडेंट्स हु आर गिविंग यू गुडी बैग्स. ओके. सो किसी को पता नहीं था क्लास में कि गुडी बैग्स भी मिलेंगे. सो यू ऑल विल बी गेटिंग गुडी बैग्स. एक में आपको मिलेगा 24 कैरेट गोल्ड ऑयल for your face. You will get 24 carat under eye oil. You will get lip balm, absolutely organic, from my students who have done my courses before and now they have launched their own brand. Okay. Second student is giving you, this is one student, so I want you to in your stories tag me, my brand and them. Just a small favor, vocal for local. If someone is giving you something, so everybody wants something in return. So just tag them on Insta and on your Facebook stories. That's it. Okay. Second girl, they are all women. Second girl is giving you cleansing, toning, moisturizing kits. That means face wash, a toner, and a moisturizer. Okay. Third, one of my student is giving you soaps, organic soaps for you and for your family. I don't know, 1 piece or 2 piece, I have no idea. They are giving me a surprise, so I'll tell you in the class only. Fourth student of mine, whose name is Pooja, is again giving you organic soaps with your pictures. I asked for your individual pictures, right? और आप लोगों ने दी भी थी. जिन लोगों ने मुझे नहीं दी हैं उनको अब नहीं मिलेगा. सो आई एम सॉरी. कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा शिखा मेरी पिक्चर्स रह गई थी इसलिए, बिकॉज मैंने मांगी थी अर्जेंट बेसिस पे. मैंने कहा था मुझे अर्जेंटली दो. सो आई हैव ब्यूटिफुल सोप्स विद योर पिक्चर ऑन योर सोप विद अ बॉक्स. सो यू विल गेट देम. आरुषि सिंह, मैम यू डिडंट आस्क मी. नो, आई आस्क्ड फ्रॉम एवरीवन. मैंने सबसे मांगी थी पिक्चर्स और सबने मुझे दी थी. नीतू मैम आपने भी भेजी थी ना? आई गेस नीतू मैम ने भी भेजी थी. सबने भेजी थी. So no worries. Next time, जब भी मेरी next workshop होगी तो आरुषि, I will tell my student who is Pooja कि please मेरी आरुषि एक student रह गई थी, उसके लिए मेरे को एक soap दे दो. ठीक है? So don't worry, but I'll give you one more soap. Don't worry, and you will love them. Just tag them. Nish Khurana is saying me too. हाँ, so you will also get, darling. आपकी पिक्चर चली गई है पूजा के पास and पूजा ने soaps भी बना दी है. So do not worry, but you have to tag 3 people. Shikha Dua, which is me. Beauty Station, which is my channel, which is my, not channel, which is my studio. And the person who is giving you your goodie bag. Okay? So you'll be getting goodie bags, I guess. 4 goodie bags will be there. Or I'll put everything in one goodie bag. I'll see to it. Okay? But do not miss your class. We'll have fun together. Serious. Do not stress about anything. Basic makeup जाके खरीद लो आज या कल में, पर लेके आना. ठीक है? We'll have coffee together. We'll have fun together, and we'll enjoy Holi also together थोड़ी सी, because उसके बाद तो आप मिलोगे नहीं मुझसे. So we'll have little Holi and थोड़ी सी होली खेल के जाएंगे, because it is very auspicious. ठीक है? So on that note, चलो bye bye करें. I have to go to my studio also. Bye. I hope so you all enjoyed the session. Now see you in the class. Where is the venue? The venue is Grand Venezia Hotel and the class timings are 2 to 5 p.m. ठीक है? खाना खा के आना. Lunch is not included in my workshop. So no lunches, baby. Only coffee is included. Okay? Chalo, bye. Take care.
I'm sorry. I talk too much. I know, but it's okay. Chalo, bye. See you soon.